چھوڑ کے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ جو تمہارا مذاق بنایا ہے مجھے اس کا احساس ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ رشتہ یہیں ختم ہونا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم مما چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ مما مجھے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ملنے گیا تھا میں ان سے، بابا صاحب نے آخری بار دیکھنے نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اسی لیے معافی بھی مانگ لوں میں تم سے۔ آئی ایم سوری سر، ان کی کچھ دیر پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جانتی ہو مجھے ایک وہم تھا کہ میں تمہاری نظروں میں سب سے اہم تھا، آج میرا وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ یہ ڈرامہ تو یہاں پر بہت انٹرسٹنگ ہی ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پر مہر جو کہ یہ سب کچھ یہاں پر تبریز کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں۔ وہ تبریز کو بتاتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرتے تو آج میرے ابو اور یہ میری فیملی اتنی مشکل میں نہیں پڑتی اور میرے ابو ہمارے ساتھ ہی ہوتے، لیکن آپ کی آنے کی وجہ سے آج میرے ابو ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ تبریز یہاں پر مہر کو سمجھانے کی کوشش میں کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ مہر آخر کر یہ آپ کیا بول رہی ہو، میں نے تو اس طرح کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو میں کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ یہاں پر مہر ایک ہی بات پر اٹکی ہوتی ہے اور یہاں پر تبریز کو یہی بتاتی ہے کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے، مجھے آپ سے خلا لینا ہے۔ یہاں پر جب خلے کی بات میں آ ہی جاتی ہے تو تبریز یہاں پر کام جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ ہماری شادی کو تو ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ خلے کی بات کیسے کر سکتی ہوں مہر؟ تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ میرے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر اب اس کی امی اسے بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ ایک پنوتی لڑکی ہو، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ ہماری گھر کی عزت اور مان رکھو گی، لیکن آپ کی وجہ سے یہاں پر مطلب میرا ہسبینڈ اور آپ کا والد صاحب اس دنیا میں ابھی نہیں رہا، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے اچھا مطلب آپ کو بیٹی بول کر مجھے شرم آ رہی ہے کہ مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر مہر روتے روتے وہاں سے چلی ہی جاتی ہیں اور یہاں پر اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں اور مہر کا یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب یہاں پر پتہ چل جاتا ہے تبریز کو تو تبریز آ ہی جاتی ہے مہر کے پاس۔ جب ہاسپٹل میں یہاں پر مہر ایڈمٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر اس کے گھر والے بھی یہاں پر آ ہی جاتے ہیں اور مہر بہت کریٹیکل سیریس یہاں پر ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں کو کیا پتا کہ مہر کو اور کچھ بھی نہیں اپنے والد صاحب کا غم کھا رہی ہیں اور اسے تو لگتا تھا وہ اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی تھی اور اسی محبت کی وجہ سے یہاں پر مہر اپنے والد صاحب کو یہی بتاتی تھی کہ میں آپ کی عزت اور مان رکھتی ہوں۔ مہر تو اپنی جگہ پر بالکل بھی ٹھیک ہے، لیکن مہر کے امی جو کہ یہ چاہتی تھی کہ یہی آپ کے ساتھ اگر ہو جائے تو آپ بتاؤ کہ آپ کیسا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر تبریز کے والد صاحب تبریز کو گھر سے بھی نکال ہی لیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے عزت اور مان سب کے سامنے مطلب تار تار کر لی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو میں کیا بولوں اور کیا نہیں، لیکن میرے نظر سے دور کہیں ہٹ جاؤ۔ یہ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی مہر خود یہاں پر تبریز سے مطلب خلا لینے کی بات میں آ ہی جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ڈرامہ تو یہاں پر بہت انٹرسٹنگ ہی ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر مہر جو کہ یہ سب کچھ یہاں پر تبریز کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں۔ وہ تبریز کو بتاتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرتے تو آج میرے ابو اور یہ میری فیملی اتنی مشکل میں نہیں پڑتی اور میرے ابو ہمارے ساتھ ہی ہوتے، لیکن آپ کی آنے کی وجہ سے آج میرے ابو ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ تبریز یہاں پر مہر کو سمجھانے کی کوشش میں کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ مہر آخر کر یہ آپ کیا بول رہی ہو، میں نے تو اس طرح کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو میں کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ یہاں پر مہر ایک ہی بات پر اٹکی ہوتی ہے اور یہاں پر تبریز کو یہی بتاتی ہے کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے،
مجھے آپ سے خلا لینا ہے۔ یہاں پر جب خلے کی بات میں آ ہی جاتی ہے تو تبریز یہاں پر کام جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ ہماری شادی کو تو ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ خلے کی بات کیسے کر سکتی ہوں مہر؟ تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ میرے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر اب اس کی امی اسے بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ ایک پنوتی لڑکی ہو، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ ہماری گھر کی عزت اور مان رکھو گی، لیکن آپ کی وجہ سے یہاں پر میرا ہسبینڈ اور آپ کا والد صاحب اس دنیا میں ابھی نہیں رہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے اچھا آپ کو بیٹی بول کر مجھے شرم آ رہی ہے کہ مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر مہر روتے روتے وہاں سے چلی ہی جاتی ہیں اور یہاں پر اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں اور مہر کا یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب یہاں پر پتہ چل جاتا ہے تبریز کو تو تبریز آ ہی جاتی ہے مہر کے پاس۔ جب ہاسپٹل میں یہاں پر مہر ایڈمٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر اس کے گھر والے بھی یہاں پر آ ہی جاتے ہیں اور مہر بہت کریٹیکل سیریس یہاں پر ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں کو کیا پتا کہ مہر کو اور کچھ بھی نہیں اپنے والد صاحب کا غم کھا رہی ہیں، اور اسے تو لگتا تھا وہ اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے یہاں پر مہر اپنے والد صاحب کو یہی بتاتی تھی کہ میں آپ کی عزت اور مان رکھتی ہوں۔ مہر تو اپنی جگہ پر بالکل بھی ٹھیک ہے، لیکن مہر کے امی جو کہ یہی چاہتی تھی کہ یہی آپ کے ساتھ اگر ہو جائے تو آپ بتاؤ کہ آپ کیسا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر تبریز کے والد صاحب تبریز کو گھر سے بھی نکال ہی لیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے عزت اور مان سب کے سامنے تار تار کر لی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو میں کیا بولوں اور کیا نہیں، لیکن میرے نظروں سے دور کہیں ہٹ جاؤ۔ یہ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی مہر خود یہاں پر تبریز سے خلا لینے کی بات میں آ ہی جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ڈرامہ تو یہاں پر بہت انٹرسٹنگ ہی ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر مہر جو کہ یہ سب کچھ یہاں پر تبریز کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں۔ وہ تبریز کو بتاتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرتے تو آج میرے ابو اور یہ میری فیملی اتنی مشکل میں نہیں پڑتی اور میرے ابو ہمارے ساتھ ہی ہوتے، لیکن آپ کی آنے کی وجہ سے آج میرے ابو ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ تبریز یہاں پر مہر کو سمجھانے کی کوشش میں کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ مہر آخر کار یہ آپ کیا بول رہی ہو، میں نے تو اس طرح کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو میں کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ یہاں پر مہر ایک ہی بات پر اٹکی ہوتی ہے اور یہاں پر تبریز کو یہی بتاتی ہے کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے، مجھے آپ سے خلا لینا ہے۔ یہاں پر جب خلے کی بات میں آ ہی جاتی ہے تو تبریز یہاں پر کام جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ ہماری شادی کو تو ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ خلے کی بات کیسے کر سکتی ہوں مہر؟ تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ میرے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر اب اس کی امی اسے بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ ایک پنوتی لڑکی ہو، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ ہماری گھر کی عزت اور مان رکھو گی، لیکن آپ کی وجہ سے یہاں پر میرا ہسبینڈ اور آپ کا والد صاحب اس دنیا میں ابھی نہیں رہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے اچھا آپ کو بیٹی بول کر مجھے شرم آ رہی ہے کہ مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر مہر روتے روتے وہاں سے چلی ہی جاتی ہیں اور یہاں پر اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں اور مہر کا یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب یہاں پر پتہ چل جاتا ہے تبریز کو تو تبریز آ ہی جاتی ہے مہر کے پاس۔ جب ہاسپٹل میں یہاں پر مہر ایڈمٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر اس کے گھر والے بھی یہاں پر آ ہی جاتے ہیں اور مہر بہت کریٹیکل سیریس یہاں پر ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں کو کیا پتا کہ مہر کو اور کچھ بھی نہیں اپنے والد صاحب کا غم کھا رہی ہیں، اور اسے تو لگتا تھا وہ اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے یہاں پر مہر اپنے والد صاحب کو یہی بتاتی تھی کہ میں آپ کی عزت اور مان رکھتی ہوں۔ مہر تو اپنی جگہ پر بالکل بھی ٹھیک ہے، لیکن مہر کے امی جو کہ یہی چاہتی تھی کہ یہی آپ کے ساتھ اگر ہو جائے تو آپ بتاؤ کہ آپ کیسا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر تبریز کے والد صاحب تبریز کو گھر سے بھی نکال ہی لیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے عزت اور مان سب کے سامنے تار تار کر لی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو میں کیا بولوں اور کیا نہیں، لیکن میرے نظروں سے دور کہیں ہٹ جاؤ۔ یہ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی مہر خود یہاں پر تبریز سے خلا لینے کی بات میں آ ہی جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ڈرامہ تو یہاں پر بہت انٹرسٹنگ ہی ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر مہر جو کہ یہ سب کچھ یہاں پر
तब्रेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तब्रेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तब्रेज़ यहाँ पर महर को समझाने की कोशिश में करते हैं, उसे बताते हैं कि महर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर महर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तब्रेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तब्रेज़ यहाँ पर काम जाते हैं, उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ महर। तो महर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मतलब मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने अच्छा मतलब आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर महर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और महर का यहाँ पर एक्सीडेंट होने जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तब्रेज़ को तो तब्रेज़ आ ही जाती है महर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर महर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं और महर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि महर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम खा रही हैं और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर महर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। महर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन महर के अम्मी क्योंकि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब तब्रेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं, उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने मतलब तार तार कर ली, मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी महर खुद यहाँ पर तब्रेज़ से मतलब खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये ड्रामा तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर महर जो कि ये सब कुछ यहाँ पर तब्रेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तब्रेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तब्रेज़ यहाँ पर महर को समझाने की कोशिश में करते हैं, उसे बताते हैं कि महर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर महर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तब्रेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तब्रेज़ यहाँ पर काम जाते हैं, उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ महर। तो महर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मतलब मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने अच्छा मतलब आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर महर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और महर का यहाँ पर एक्सीडेंट होने जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तब्रेज़ को तो तब्रेज़ आ ही जाती है महर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर महर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं और महर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं।
लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि मेहर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम गा रही हैं, और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी, और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। मेहर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन मेहर के अम्मी जो कि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब तब्रेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं। उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने मतलब तार तार कर ली। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी मेहर खुद यहाँ पर तब्रेज़ से मतलब खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये ड्रामा तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर मेहर जो कि ये सब कुछ यहाँ पर तब्रेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तब्रेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तब्रेज़ यहाँ पर मेहर को समझाने की कोशिश में करते हैं। उसे बताते हैं कि मेहर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर मेहर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तब्रेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तब्रेज़ यहाँ पर काम जाते हैं। उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ मेहर। तो मेहर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मतलब मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने अच्छा मतलब आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मेहर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और मेहर का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तब्रेज़ को तो तब्रेज़ आ ही जाती है मेहर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर मेहर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं और मेहर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि मेहर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम गा रही हैं, और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी, और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। मेहर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन मेहर के अम्मी जो कि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब तब्रेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं। उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने मतलब तार तार कर ली। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी मेहर खुद यहाँ पर तब्रेज़ से मतलब खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये ड्रामा तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर मेहर जो कि ये सब कुछ यहाँ पर तब्रेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तब्रेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तब्रेज़ यहाँ पर मेहर को समझाने की कोशिश में करते हैं। उसे बताते हैं कि मेहर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर मेहर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तब्रेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तब्रेज़ यहाँ पर काम जाते हैं। उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ मेहर। तो मेहर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मतलब मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा।
मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने अच्छा मतलब आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मेहर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और मेहर का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तबरेज़ को, तो तबरेज़ आ ही जाती है मेहर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर मेहर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं। मेहर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि मेहर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम खा रही हैं। और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। मेहर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन मेहर के अम्मी जो कि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तबरेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं। उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने मतलब तार तार कर ली। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी मेहर खुद यहाँ पर तबरेज़ से मतलब खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये ड्रामा तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर मेहर जो कि ये सब कुछ यहाँ पर तबरेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तबरेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तबरेज़ यहाँ पर मेहर को समझाने की कोशिश में करते हैं। उसे बताते हैं कि मेहर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर मेहर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तबरेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तबरेज़ यहाँ पर काम जाते हैं। उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ मेहर। तो मेहर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मतलब मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने अच्छा मतलब आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मेहर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और मेहर का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तबरेज़ को, तो तबरेज़ आ ही जाती है मेहर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर मेहर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं। मेहर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि मेहर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम खा रही हैं। और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। मेहर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन मेहर के अम्मी जो कि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तबरेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं। उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने मतलब तार तार कर ली। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी मेहर खुद यहाँ पर तबरेज़ से मतलब खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये ड्रामा तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर मेहर जो कि ये सब कुछ यहाँ पर तबरेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तबरेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तबरेज़ यहाँ पर मेहर को समझाने की कोशिश में करते हैं। उसे बताते हैं कि मेहर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर मेहर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तबरेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है,
मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तबरेज़ यहाँ पर काम जाते हैं, उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ महर। तो महर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर महर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और महर का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तबरेज़ को, तो तबरेज़ आ ही जाती है महर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर महर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं। महर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि महर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम खा रही हैं और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर महर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। महर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन महर के अम्मी जो कि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तबरेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं। उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने तार तार कर ली। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी महर खुद यहाँ पर तबरेज़ से खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये ड्रामा तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर महर जो कि ये सब कुछ यहाँ पर तबरेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तबरेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तबरेज़ यहाँ पर महर को समझाने की कोशिश में करते हैं। उसे बताते हैं कि महर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर महर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तबरेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तबरेज़ यहाँ पर काम जाते हैं। उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ महर। तो महर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर महर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और महर का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तबरेज़ को, तो तबरेज़ आ ही जाती है महर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर महर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं। महर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि महर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम खा रही हैं और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर महर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। महर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन महर के अम्मी जो कि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तबरेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं। उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने तार तार कर ली। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी महर खुद यहाँ पर तबरेज़ से खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये ड्रामा तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर महर जो कि ये सब कुछ यहाँ पर
तब्रेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तब्रेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तब्रेज़ यहाँ पर महर को समझाने की कोशिश में करते हैं, उसे बताते हैं कि महर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर महर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तब्रेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तब्रेज़ यहाँ पर काम जाते हैं, उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ महर। तो महर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मतलब मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने अच्छा मतलब आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर महर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और महर का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तब्रेज़ को तो तब्रेज़ आ ही जाती है महर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर महर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं और महर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि महर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम खा रही हैं और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर महर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। महर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन महर के अम्मी जो कि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब तब्रेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं, उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने मतलब तार तार कर ली, मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी महर खुद यहाँ पर तब्रेज़ से मतलब खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये ड्रामा तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर महर जो कि ये सब कुछ यहाँ पर तब्रेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तब्रेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तब्रेज़ यहाँ पर महर को समझाने की कोशिश में करते हैं, उसे बताते हैं कि महर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर महर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तब्रेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तब्रेज़ यहाँ पर काम जाते हैं, उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ महर। तो महर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मतलब मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने अच्छा मतलब आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर महर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और महर का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तब्रेज़ को तो तब्रेज़ आ ही जाती है महर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर महर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं और महर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं।
लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि मेहर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम खा रही हैं, और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी, और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। मेहर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन मेहर के अम्मी जो कि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तबरेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं। उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने मतलब तार तार कर ली। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी मेहर खुद यहाँ पर तबरेज़ से मतलब खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये ड्रामा तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर मेहर जो कि ये सब कुछ यहाँ पर तबरेज़ के ऊपर ही डाल देते हैं। वो तबरेज़ को बताते हैं अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो आज मेरे अब्बू और ये मेरी फैमिली इतनी मुश्किल में नहीं पड़ती और मेरे अब्बू हमारे साथ ही होते, लेकिन आपकी आने की वजह से आज मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे। तबरेज़ यहाँ पर मेहर को समझाने की कोशिश में करते हैं। उसे बताते हैं कि मेहर आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर मेहर एक ही बात पर अटकी होती है और यहाँ पर तबरेज़ को यही बताती है कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे आपसे खुला लेना है। यहाँ पर जब खुले की बात में आ ही जाती है तो तबरेज़ यहाँ पर काम जाते हैं। उसे बताते हैं कि हमारी शादी को तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आप खुले की बात कैसे कर सकती हूँ मेहर। तो मेहर उसे बताते हैं कि मेरे आपके साथ नहीं रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब उसकी अम्मी उसे भी यही बताती है कि आप एक पनौती लड़की हो, मुझे तो लगता था कि आप हमारी घर की इज्जत और मान रखोगी, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर मतलब मेरा हस्बैंड और आपका वालिद साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि आपके साथ मैंने अच्छा मतलब आपको बेटी बोलकर मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मेहर रोते रोते वहाँ से चली ही जाती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और मेहर का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब यहाँ पर पता चल जाता है तबरेज़ को तो तबरेज़ आ ही जाती है मेहर के पास। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर मेहर एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर उसके घर वाले भी यहाँ पर आ ही जाते हैं और मेहर बहुत क्रिटिकल सीरियस यहाँ पर होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि मेहर को और कुछ भी नहीं अपने वालिद साहब का गम खा रही हैं, और उसे तो लगता था वो अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी, और इसी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब को यही बताती थी कि मैं आपकी इज्जत और मान रखती हूँ। मेहर तो अपनी जगह पर बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन मेहर के अम्मी जो कि यही चाहती थी कि यही आपके साथ अगर हो जाए तो आप बताओ कि आप कैसा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तबरेज़ को घर से भी निकाल ही लेते हैं। उसे बताते हैं कि आपने हमारे इज्जत और मान सबके सामने मतलब तार तार कर ली। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन मेरे नज़रों से दूर कहीं हट जाओ। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी मेहर खुद यहाँ पर तबरेज़ से मतलब खुला लेने की बात में आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़